Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 20 जनवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। पहले हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं CMP-DIL। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक ऐसी नई न्यू डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि जो माइनिंग के टाइम पे आपकी डस्ट हवा में उड़ती है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये CMP-DIL क्या है? आपका सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। इन्होंने एक सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्यूजिटिव डस्ट इसको डेवलप करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th एडिशन ऑफ IRENA। ठीक, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की जो 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, 13th सेशन हुआ असेंबली का। इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी? अब इंडिया के पास रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। 14 जनवरी 2023 को अबू धाबी में हुई थी ये 13th सेशन असेंबली का IRENA का, और किसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी? इंडिया के पास। फिर यहाँ पे हम बात करें तो जो थीम है आपकी IRENA की, थीम क्या है? वो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस द ग्लोबल स्टॉक टेक। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? COP 2028 किसके द्वारा होस्ट की जाएगी? ये आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा होस्ट की जाएगी 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच में 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली अशोक लीलैंड के साथ टाई अप किया अलॉन्ग विद बेलार्ड। ये बेलार्ड क्या है? ये आपकी कनाडा की एक कंपनी है। ठीक है। अडानी ग्रुप एंड अशोक लीलैंड एंड बेलार्ड, इन तीनों के द्वारा मिलके एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक को सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई, इसको बनाने की बात की गई। ठीक है। अडानी ग्रुप, अशोक लीलैंड एंड बेलार्ड ग्रुप के द्वारा। अडानी की बात करें, अडानी ग्रीन ने ही पहला हाइब्रिड प्रोजेक्ट सेटअप किया था इंडिया में, जो था आपका सोलर एंड विंड। इन्होंने ही बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की भी बात की थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सैन्य रणक्षेत्रम 2.0। ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ये एक आपका सेमिनार कम वर्कशॉप है। बेसिकली यहाँ पे जो आपकी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई कि हम जानते हैं सब कुछ अब डिजिटाइज हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, तो आपके जो थ्रेट्स हैं, ऑनलाइन थ्रेट्स हैं, वो भी बढ़ रहे हैं।
ऑनलाइन सिक्योरिटी पे भी ब्रीच हो रही है। तो ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ही ये आपकी सेमिनार कम वर्कशॉप लॉन्च की गई थी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। पहली स्टेट जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन को यूज किया था वो भी उत्तराखंड थी। फिर अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, इन्होंने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन को लॉन्च किया विद CESL एंड WRI। किन्होंने? नीति आयोग ने। और इन्होंने ही 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर में। इन्हीं के द्वारा, याद रखेंगे, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया कि इंडिया सबसे लेस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। ठीक है। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो कर्नाटका को अपॉइंट किया गया था, मतलब कर्नाटका ने अडॉप्ट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को। और अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्मेट में कि वो स्टेट का नाम बताओ जो कि बेस्ट स्टेट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी आपकी कौन सी है? कर्नाटका। फिर एयरटेल ने पार्टनर किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ टू लॉन्च एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वीमेन इन इंडिया लिस्ट 2021 में निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने टॉप किया है। फिर अगर यहीं पे एक चीज याद रखेंगे, ये तो हमने देखा कि निर्मला सीतारमन ये मोस्ट पावरफुल वीमेन इन इंडिया है 2021 के लिए। अगर यही डाटा अगर मैं वर्ल्ड के लिए कह दूं कि 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन वर्ल्ड की कौन है, तो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 37 पोजीशन पे आती है, और नायिका की फाल्गुनी नैयर ये आपकी 88 पोजीशन पे आती है। ठीक है। फिर महाराष्ट्र की बात करें, इन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उन्नति के नाम से टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए। पहला ड्रोन मेला कहां पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं पूछूं बिगेस्ट ड्रोन मेला कहां पे हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में होता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। थर्ड ऑर्गेनिक एक्सपो भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जरा बताओ सेमिकॉन इंडिया कहां हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए कौन सी स्टेट अभी घोषित की गई है? वो है गुजरात। कौन सी दो कंपनीज ने MOU साइन किया? फॉक्सकॉन एंड वेदांता। ठीक। फिर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर मां उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में ही याद रखेंगे 36 नेशनल गेम्स हो रहे हैं अभी। फिर ओडिशा ने इंक किया एक पैक्ट विद UNCDF टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब्स फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तराखंड में, और इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओलेफ श्लोज, इनको अपॉइंट किया गया जर्मनी का न्यू चांसलर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 4th एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। फॉर्ब्स का हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में निर्मला सीतारमन का हमारा 37 पोजीशन आती है, और नायिका की फाल्गुनी नैयर ये आपकी 88 पोजीशन पे। फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात करें, इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज। इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ द RATS SCO। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 56। और यहाँ पे टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने इस स्पॉट में टॉप कराया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी पहला टाइगर रिजर्व अप्रूव किया है बुंदेलखंड रीजन में। काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं टाइगर से रिलेटेड तो जरा देखें, पहला या फिर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1973 में। और 1973 में ही आपका चिपको मूवमेंट भी आया था। अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो यह आया था 1972 में। ठीक है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी पहला टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है। कहां पर? बुंदेलखंड रीजन में। और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रहेगा। ठीक है। क्या नाम रहेगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसको अप्रूव किया गया under section 38V of the Wildlife Protection Act, which has previously been notified as Ranipur Wildlife Sanctuary in the चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो बुंदेलखंड रीजन में इसको टाइगर की कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए यूपी में ये पहला टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बुंदेलखंड रीजन में। और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व रहेगा। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है जो आपको देखने को मिलेंगे, 4 टाइगर रिजर्व जो हमने बात की, वो कौन कौन से रहेंगे? जैसे रानीपुर टाइगर रिजर्व, फिर आ जाता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, फिर आ जाता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं अब।
चलिए अगर मैं इसी की बात करूं टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पे जो इसका एरिया रहेगा ना वो अराउंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी ना, ये पहले थी कहाँ था, यूपी में ही थी। तो ये पहले थी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कर दिया है। ठीक, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। कुछ 530 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिपी एयरपोर्ट की। चिपी एयरपोर्ट को जो कि महाराष्ट्र में है, इसको नाम चेंज करके अब क्या करने की बात की गई है, आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई जी के। ये काफी फेमस व्यक्ति हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये एक सोशलिस्ट थे, तो इनके नाम के बिहाफ पे ये नाम चेंज करने की बात की गई ऑफ द चिपी एयरपोर्ट। ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट सोशल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। इस चिपी एयरपोर्ट को मार्च में 2019 में इनॉग्रेट किया गया था और अब इसका नाम चेंज करने की बात की गई आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई जी। नेक्स्ट पे आते हैं ICAO। ICAO क्या होता है आपका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक, फिर दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये किन के बीच में टाइप था, अगर आपको याद हो, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपका सोलर एनर्जी से रिलेटेड वर्क करता है। तो अभी रिसेंट में जो टाइप हुआ है, एक MOU साइन किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ICAO के द्वारा। तो रीजन क्या था, ये 42nd असेंबली के दौरान ICAO असेंबली जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में, इनका हेडक्वार्टर भी यही है, यहाँ पे जो ये टाइप हुआ है, ये MOU साइन हुआ है, ये क्या है बेसिकली, जो एविएशन सेक्टर है वो जो कार्बन फुटप्रिंट रिलीज करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस रिलीज की जाती हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द एविएशन फ्यूल, उसको चेक करने के लिए, उसके लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए कि क्या वो कंट्रोल में है या नहीं है, क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है एक्सेस में। इसीलिए ये एक MOU साइन किया गया, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है इससे भी, एंड उसको हमें चेक में रखना है और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की यहाँ पे बात की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे इंडिया का टारगेट देख लेते हैं, क्या रहेगा, टू नेट जीरो कार्बन गोल क्या है इंडिया का टारगेट ईयर 2070। ये COP26 के दौरान इन्होंने टारगेट सेट किया था। फिर इंडिया का टारगेट रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से 100 गीगावाट आपकी सोलर एनर्जी होगी बाय 2022, एंड रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 30 से 35% बाय 2030। ठीक है, फिर अगर मैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया था वर्ल्ड का 2015 में। अगर मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, तो ये भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है। कौन सी, हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पे। और इनका भी एक टारगेट ईयर था कि हम भी कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, कब तक, 2030 तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन नेवल शिप सुनायना की बात करें। ये सुनायना अभी क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी, क्योंकि इन्होंने अभी इस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया एक मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज जो कि सीशेल्स में कंडक्ट कराई जा रही थी। ठीक है, अगर मैं इस INS सुनायना की बात करूं, सुनायना की बात करूं, इसकी स्पीड रहेगी कितनी, 25 नॉट्स की। हम जानते हैं नॉट्स आपकी स्पीड होती है जो ओशंस में इन वेसल्स के द्वारा जो नापी जाती है। फिर इसको डेवलप किया गया था अक्टूबर 2013 में। ठीक है, किसके द्वारा कमीशन डेवलप किया गया था इसको, डिजाइन एंड डेवलप बाय गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक, और इसने ही अभी पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज थी, इसको CMF भी बोलते हैं, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज, जो कि सीशेल में कराई गई थी 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज जो कि सीशेल्स में हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस INS सुनायना की। तो ये सेकंड सूर्या क्लास सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, OPV नेवल OPV है। ठीक है, और इसको कभी कमीशन किया गया था, अक्टूबर 2013 में इसको कमीशन किया गया था। फिर दूसरी चीज, ये गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन एंड डेवलप्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे जलदूत ऐप। जलदूत बेसिकली, जल क्या होता है, पानी। जलदूत ऐप आपका बेसिकली क्या दर्शाता है कि ग्राउंड वाटर में जो आपका लेवल है वो कितना है, जो ग्राउंड वाटर आपका पानी है, जो अंडरग्राउंड जो आपका जमीन में पानी है, उसका लेवल कहाँ कितना है ऑल ओवर इंडिया, कौन सी जगह पे, किस स्टेट में कितना ज्यादा पानी है, कहाँ पर हमें कम पानी देखने को मिल रहा है। तो इस सब की मॉनिटरिंग करने के लिए जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया दिल्ली में। किनके द्वारा ये डेवलप की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ
पंचायती राज के द्वारा इनको मिलके ये आपकी एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर टेबल्स को अक्रॉस द कंट्री मॉनिटर करने के लिए ही ये जलदूत ऐप लॉन्च की गई। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, डीआरडीओ के द्वारा अभी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को टेस्ट किया गया। इसको टेस्ट कहां से किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया। आई रिपीट, क्या याद रखेंगे? डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को टेस्ट किया गया, आईटीआर चांदीपुर से ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया। और दिस मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंजेस। ठीक है, शॉर्ट रेंज में आपके जो एरियल थ्रेट्स हैं उसको खत्म करने के लिए ये यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेविक। नेविक क्या है आपका? जैसे आपका जीपीएस होता है ना कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे ही आपका नेविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। मतलब जैसे इंडिया में हम देखते हैं मोबाइल फोन्स पे हम जीपीएस यूज करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि 2023 के बाद जो भी स्मार्टफोन्स इंडिया में सेल किए जाएंगे उसमें जीपीएस की जगह नेविक सिस्टम को यूज किया जाएगा। ये भी आपका जीपीएस की तरह ही है, मैप शो करेगा लेकिन नेविक टेक्नोलॉजी से। नेविक 2006 में प्रपोज की गई थी और 2018 में जाके इसको लॉन्च कर दिया गया था, बना दिया गया था। तो अब इंडिया ने ऑपरेशनल आ गया था और ये 174 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करने के लिए ये बोल रही है कि अब आपको इंडिया में अगर फोन बेचने हैं तो उसमें नेविक सिस्टम यूज करना है इंस्टेड ऑफ जीपीएस। ठीक, चलिए फिर देख ही चुके हम 2006 में इसको 174 मिलियन डॉलर की लागत से अप्रूव किया गया, ऑपरेशनल 2018 में आया। और नेविक 8 सैटेलाइट से कंसिस्ट करता है एंड कवर द होल ऑफ इंडिया लैंडमास एंड अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वें एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज वरुणा की। ये वरुणा क्या है? आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवीज के बीच में होती है। किन दो नेवीज के बीच में देखने को मिलती है? इंडिया एंड आपका जापान, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हमें ये देखने को मिलती है। 21वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये वरुणा एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद हमें याद रखना है FIH ओडिशा वर्ल्ड कप। ओडिशा में हो रहा है FIH का हॉकी वर्ल्ड कप। कहाँ पर हो रहा है? राउरकेला एंड भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इन्होंने अलाउ किया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द जेट एयरवेज टू द जलान कैलरॉक कंसोर्टियम। हमने देखा था जो जेट एयरवेज है 2019 अप्रैल में इनकी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इनके ऑपरेशंस बंद हो गए थे और अभी JKC के द्वारा फिर से एक रिवाइवल प्लान सबमिट किया गया था जो कि अप्रूव मिल गया, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। फिर आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, मार्क करेंगे इसको भी। MV गंगा विलास, यह भी रिसेंटली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज शिप है, रिवर क्रूज शिप है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। इसकी अगर हम बात करें क्रूज शिप की, ये वाराणसी से, यूपी वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। ठीक, अगर हम इसी की बात करें तो ये 27 रिवर सिस्टम से होता हुआ जाएगा। 21 दिन लंबा ये आपका लग्जरी क्रूज रहेगा MV गंगा विलास। 27 रिवर सिस्टम, 3200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा यह वाराणसी, यूपी वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम। और किस कंट्री से होता हुआ जाएगा? बांग्लादेश से ही होता हुआ जाएगा। इसकी जो पहली ट्रिप है इसमें 32 टूरिस्ट रहेंगे स्विट्जरलैंड के, और इसको डेवलप इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमला देवी, ICGS कमला देवी। ये 5th एंड लास्ट फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज है जिसको भी कमीशन किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और GRSE के द्वारा, गार्डन रीजन शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे पे। सबसे पहली न्यूज़ आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया है पढ़ो प्रदेश स्कीम। ये पढ़ो प्रदेश स्कीम जून महीने में लॉन्च की गई थी 2006 में। तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी पढ़ो प्रदेश स्कीम बेसिकली। और स्कीम के अंडर क्या है, किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई के लिए लोन चाहिए तो वो लोन ले सकते हैं यहाँ पर, और इसका जो इंटरेस्ट होगा ना, उनको लोन का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट उसे सब्सिडाइज कर देगी। गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फॉर सच काइंड ऑफ एजुकेशन लोन। मान लो किसी बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, किसी बाहर कंट्री में पढ़ने जाना है, तो उसके लिए लोन लेके जो वो जा सकते हैं। जैसे PhD करनी है, MPhil करनी है, मास्टर्स डिग्री करनी है, तो
तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होगा लोन पर, लोन भी मिलेगा उनको, और जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा। जो इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक को वो सरकार की सब्सिडी के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए किन्होंने टाइप किया था, कैनरा बैंक ने किया था, और इसीलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कैनरा बैंक को प्रोवाइड कर दिया कि अब वो इसमें आगे और किसी भी तरीके से लोगों को नहीं लेंगे। अगर हम बात करें, कैनरा बैंक ने जो सब्सिडी रिसीव की थी वो है 20.20 करोड़ रुपए की यहाँ पे देखने को मिली। इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी एक और स्कीम को यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो है आपकी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। ठीक है, इस स्कीम को भी अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया ने, अगर अभी बात करूं मैं एक डाटा की जो कि रिलीज़ किया गया डील रूम एंड लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा, इनके द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया अबाउट द टेक सेक्टर, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पर बताया गया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया में इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है अराउंड 24.1 बिलियन डॉलर की। अगर यहीं पे मैं यूएसए की बात करूं सबसे ज़्यादा देखने को मिली, और इंडिया 4th पोजीशन पे था, यूएस 1st पोजीशन पे है इन दिस इन्वेस्टमेंट, जो कि 233.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 2nd पोजीशन पे आ जाता है आपका चाइना विद 48 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट, और 3rd पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम आ जाता है विद 29.9 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली। ठीक, लंदन एंड पार्टनर्स की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, लंदन यूके में रहेगा, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ देखने को मिली, बेंगलोर में देखने को मिलते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, जो कि को स्पॉन्सर किया गया है बाय इंडिया। अब देखो ये क्या है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मैं बात करूं, इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है ना वो कंपलसरी होना चाहिए, और कोई भी अगर डेमोक्रेटिक नेशन है तो वहाँ पर एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, बी इट अ मेल और अ फीमेल। एजुकेशन से ही देश आगे बढ़ता है, एजुकेशन से ही जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, एजुकेशन से ही आप ये समझिए जो नशा है, जो ड्रग्स होते हैं, जो लोग इधर उधर मार पिटाई करते हैं, ठीक है, बदमाशी करते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं एजुकेशन को आगे बढ़ा के। इवन इन द रिमोट एरियाज़ में एजुकेशन को पहुंचाना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, यूएन का भी न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर रहता है। नेक्स्ट अभी एक यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया गया कि जो सरकार के द्वारा फंडिंग स्कीम्स चलाई जाती हैं फॉर द एजुकेशन, उस एजुकेशन का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना वो होती है पुअर लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, जो लोअर स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, जो लोग जिनके पास प्रिविलेज नहीं होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी स्कीम की। लेकिन अभी जो डाटा रिलीज़ किया गया यूनिसेफ के द्वारा वो बताएगा कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये स्कीम्स लॉन्च करती हैं पब्लिक फंडिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सिर्फ 10 से 20% लोग ही जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, पुअर लोग हैं, वो इसका फ़ायदा ले पाते हैं। बाकी जो आपकी फंडिंग होती है वो आपके रिच लोगों के पास ही चली जाती है, बीट करप्शन, बीट एनीथिंग। लेकिन सिर्फ 10 से 20% ही ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है और जिनको जेन्युइनली इस फंडिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो एजुकेशन ले सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। ऐसे सिर्फ 10 से 20% ही लोग हो पाते हैं। ठीक, यहीं पे अगर बात करें, ये रिपोर्ट स्टेट करती है दैट द चिल्ड्रन लिविंग इन द पॉवर्टी आर लेस लाइकली टू हैव एक्सेस टू स्कूल एंड ड्रॉप आउट सूनर। The education system across the globe was largely failing since millions of schools-going children did not grasp basic reading and mathematics skill. It is estimated that around 2/3 of all 10-year-old across the globe cannot read and understand a simple story. ठीक, यूनिसेफ की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का कहाँ रहेगा, पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को में ही 2024 में पेरिस में ही 2024 में हम ओलंपिक गेम्स ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया था ट्रैक्सॉन डाटा के द्वारा। इस ट्रैक्सॉन डाटा ने, जिनका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में ही है, इनके द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया कि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, फंडिंग देखने को मिली। ठीक, अगर मैं बेंगलोर की बात करूं 10.8 बिलियन डॉलर की हमें यहाँ पे फंडिंग देखने को मिली। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में 3.9 बिलियन डॉलर की देखने को मिली। फिर आ जाती है गुरुग्राम हरियाणा में, जहाँ पर हमें 2.6 बिलियन डॉलर की फंडिंग देखने को मिलती है।
इसके बाद दिल्ली एंड चेन्नई की बात करूं तो वहाँ पे $1.2 बिलियन ईच फंडिंग देखने को मिली एंड पुणे महाराष्ट्र में $1 बिलियन की फंडिंग हमें देखने को मिलती है। अब ये क्या होगा बेंगलोर में, क्योंकि हम देखते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, टेक हब भी बोला जाता है, सेमिकॉन इंडिया भी यहीं पे हुई थी आपकी बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, आईटी सेक्टर काफ़ी हब है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। इवन अगर मैं बात करूँ बायजूस की, बायजूस याद रखना अब 2022 में सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाने वाली कंपनी बनी है इंडिया की विद $1.2 बिलियन। इवन आपने न्यूज़ सुनी होगी केरला का जो ब्रांच है बायजूस की, वहाँ से काफ़ी लोगों को इन्होंने हटा दिया था। क्यों बोल के कि ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। फिर उन्होंने लायनल मेसी को भी हायर किया जो कि इनके ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर इनको अब डाटा आ रहा है कि सबसे ज़्यादा भी फंडिंग इनको मिली है। तो इट वाज जस्ट अ ब्लफ आई कैन से एट दैट टाइम कि फंडिंग नहीं थी, तो वो एक अलग चीज़ थी। ठीक, तो अगर हम ट्रैक्सन की बात करें जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया, नेहा सिंह यहाँ पे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगी। हेडक्वार्टर रहेगा आपका बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम निकाली गई कि आप अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा लो और उस फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड इशू हम कर दिए जाएंगे। दो तरह के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रहेंगे, एक तो है पीएनबी ग्लोबल का गोल्ड, पीएनबी ग्लोबल गोल्ड, और दूसरा है पीएनबी ग्लोबल क्लासिक। ये डिज़ाइन किए गए हैं टू मीट द वेरियस इनकम लेवल्स एंड कस्टमर नीड्स को। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इससे क्या है आपका जो आपका एफडी है उसका 80% तक का आपके अमाउंट को यहाँ पे क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। मान लो आप 10 लाख कराते तो आपको 8 लाख रुपए तक की आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी एज एन क्रेडिट कार्ड। और यहीं पे आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट है पहले 6.25% होता था फिक्स रेट, अब उसको बढ़ा के 6.75 कर दिया गया है पीएनबीआई के द्वारा। पीएनबी की बात करूं तो एमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो हैं अतुल कुमार गोयल जी। 1894 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं ईवाई अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी हम जानते हैं कुछ 3.6 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से चल रही है। इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना। और इसी डाटा में इन्होंने बताया कि आने वाले 2047 तक जब हमारे इंडिया को 100 साल हो जाएंगे हमारी इंडिपेंडेंस को, 2047 तक जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी होगी ना वो $26 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ये टारगेट है और ये एस्टिमेट लेके चला जा रहा है। ठीक, इसी के साथ साथ बोला गया 2047 तक $15,000 ये आपकी एनुअल इनकम रहेगी, पर कैपिटा एनुअल इनकम रहेगी किसी भी हाउस होल्ड की। ठीक, और इसी के साथ साथ बोला गया जहाँ पे मेन यहाँ पे कंट्रीब्यूटर रहेंगे वो आपका रहेगा रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है ये सारा जो डाटा रिलीज़ किया गया ना अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा, ये रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान जो कि डेवोस में हो रही है स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखेंगे हम बात करते हैं, देखो अभी $5 ट्रिलियन पहुंचना है, 10 पहुंचना है, फिर 20 पहुंचना है। तो 5 हम पहुंच जाएंगे फिस्कल ईयर 2028 तक, 10 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे फिस्कल ईयर 2036 और 20 ट्रिलियन तक फिस्कल ईयर 2045 तक हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। डाटा हम अचीव कर लेंगे। ईवाई की मैं बात करूं चेयरमैन हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयूष गोयल। इन्हीं के द्वारा पहला आपका मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था मैंगो फेस्टिवल, ताकि इंडियन मैंगो की क्वालिटीज को प्रमोट किया जा सके। तो अभी रिसेंटली आप याद रखेंगे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 के विनर्स को फैसिलिटेट किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना अगर मैं बात करूं नेशनल स्टार्टअप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका 16 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। और 15 जनवरी को आपका इंडियन आर्मी डे होता है और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ पीयूष गोयल जी ने फैसिलिटेट किया नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स को न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक मार्क प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया। ये मार्क क्या है, मेंटर एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। आई रिपीट, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ये आपका मार्क प्लेटफॉर्म है जो कि पीयूष गोयल जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। 2023 में हमने नेशनल स्टार्टअप डे का 2nd एडिशन ऑब्जर्व किया है, याद रखेंगे। और इसी के साथ एक होता है आपका स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब तक था, 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में 2023 में हमने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑब्जर्व
किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 की। यहाँ पर ओडिशा ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है फॉर स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम, जो कि है जग्गा मिशन। जग्गा मिशन बेसिकली क्या कहता है कि जो आपके स्लम एरियाज है ना, हम उनको इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पर हम साफ सफाई करेंगे, क्लीनलीनेस करेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बेटर फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की यहाँ पे बात की गई। और अराउंड 2919 स्लम्स को यहाँ पे ओडिशा में अपग्रेड कराने की बात की गई अंडर दिस जग्गा मिशन, और इसीलिए इनको ब्रॉन्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर देयर स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम, जो कि है जग्गा मिशन अंडर यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 के लिए। ठीक है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रहेंगे। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहीं पे फीफा वर्ल्ड कप आपको, यहीं पे आपका हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप राउरकेला भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में राउरकेला में आपका बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी है इंडिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी कंफर्म किया है इंगर एडिसन का कि ये इनका सेकंड टर्म रहेगा एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पहला जो टर्म पीरियड था वो था 2019 से लेके 2023 तक, और अब 2023 से लेके 2027 तक इनका सेकंड टर्म रहेगा एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, 4 साल का इनका टर्म रहता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर यहीं पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मैं हेडक्वार्टर पूछ लूँ, नायरोबी कीनिया रहेगा। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1972 में। इंगर एडिसन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में, और 1945 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सुजीत शर्मा की। इन्होंने वोडाफोन इंडिया को भी ज्वाइन किया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव नेटवर्क एंड कमर्शियल तौर पे, जहाँ पे ये इंचार्ज होंगे प्रोक्योरमेंट फॉर द कंपनी के। ठीक है, सुजीत शर्मा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वोडाफोन इंडिया के। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्वे के आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने अभी वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रून स्टोन को फाइंड किया, जो कि 2000 साल पुराने हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनेग्मेटिक हिस्ट्री रहती है। ऑस्लो नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्चर्स, मोन्यूमेंटल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की गई हैं। और ये जो रून स्टोन है, ओल्डेस्ट रून स्टोन है, यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जर्मनिक अल्फ़ाबेट में। 8 रून स्टोन्स ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टोन रीडिंग इडीबर्ग यहाँ पे फाइंड किए गए। ये आपका जो रून स्टोन मिला है ये 31 बाय 32 सेंटीमीटर का है, और काफ़ी इंस्क्रिप्शंस इसमें हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेल्स फुटबॉलर गैरेथ बेल। गैरेथ बेल ने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ठीक है, याद रखेंगे गैरेथ बेल ये आपके 23 साल के हैं और 5 टाइम चैंपियन लीग विनर है विद रियल मैड्रिड एंड वेल्स मेंस ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर भी ये रह चुके हैं, और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं गैम्बियन वाइस प्रेसिडेंट बदारू एली। इनका रिसेंटली निधन हो गया है, इंडिया में ही इनका निधन हुआ, और इनकी बात करें तो 65 की एज में इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनका जन्म 1958 में हुआ था गैम्बिया में ही। नेक्स्ट आ जाती हैं फिर पद्माश्री अवार्डी प्रभाबेन शाह। ये प्रभाबेन शाह, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ये याद रखेंगे। सोशल वर्कर थे अपने टाइम पे, बहुत अच्छी सोशल वर्कर रह चुकी हैं। इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में, बारडोली सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और फिर ये 1963 में जाके दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी में सेटल हो गई थी। 1930 में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने जो गुजरात फ्लड विक्टिम थी उनकी भी मदद की थी। दमन की दिव्या के नाम से ये फेमस रहती हैं, इनको जाना जाता है। ठीक, फिर ये जो वीमेन है, वीमेन को एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे ले जाने में मदद करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं। जो अंडर प्रिविलेज स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उनकी हेल्प करती हैं। ठीक है, महिला मंडल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक वीमेन एसोसिएशन थी 1963 में। तो इन्होंने सोशल वर्क काफ़ी करा है, और इसीलिए इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एंड अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th एडिशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे। ये आपका 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। NDRF डे भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जनवरी को, और इसका 18वां एडिशन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। पहली बार जब ये ऑब्जर्व किया गया था डे 2006 में ऑब्जर्व किया गया था, 19 जनवरी 2006 को पहला। ये क्या होता है? बेसिकली एक फोर्स होती है कि जब भी आपका कोई मैन मेड डिजास्टर या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उसके लिए टैकल करने के लिए जो लोग होते हैं, जो तैयार रहते हैं, उनको NDRF की टीम बोला जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया पढ़ो परदेश स्कीम को।
इंडिया ने रैंक किया 4th ग्लोबली फॉर टेक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट इन 2022 और यूएस ने टॉप किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी जो कि को स्पॉन्सर किया गया इंडिया के द्वारा। पुअरेस्ट लर्नर बेनिफिट द लीस्ट फ्रॉम द नेशनल पब्लिक एजुकेशन फंडिंग स्कीम एज पर यूनिसेफ। और $10.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली बेंगलोर में ऑन स्टार्टअप फंडिंग इन 2022। ये ट्रैक्सकन का डाटा रहेगा। पीएनबी वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स डिजिटली। एसबीआई ने रेज किया 9,718 करोड़ रुपीस वाया सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस। ईवाई इन्होंने रिपोर्ट किया रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू रेज 22 बी ग्रोन एट $26 ट्रिलियन बाय 2047। फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फैसिलिटेट किया नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 के विनर्स को। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स की बात करें तो ओडिशा ने यहाँ पे जीत लिया है ब्रॉन्ज फॉर स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम जग्गा मिशन जो रहेगा, और यहाँ पे कुछ 2,919 स्लम्स को अपग्रेड किया जाए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कंफर्म किया इंगर एडिसन का सेकेंड टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2023 से 2027 तक रहेगा। सुजीत शर्मा इन्होंने वोडाफोन इंडिया को ज्वाइन किया एज वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव नेटवर्क एंड कमर्शियल के तौर पे। नॉर्वे आर्कियोलॉजिस्ट इन्होंने वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ड्यूनस्टोन को फाइंड किया, 2000 साल पुराना है, नॉर्वे ओस्लो में। वेल्स फुटबॉलर गैरेथ बेल इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल एंड क्लब फुटबॉल। गैम्बियन वाइस प्रेसिडेंट बदारा एलियू जोफ इनका निधन हो गया इंडिया में। पद्माश्री अवार्डी प्रभाबेन सा इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। 18वें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे की बात करें तो 19 जनवरी 2023 को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में भी लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल्सो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंड आपको हमारी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ आप क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि कैरियर्स क्लाउड की हमारी एप्लीकेशन एज वेल एज वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप हमारे कोर्सेज लेके आप ये क्विज अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू टारगेट फॉर रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। इन्वेंटिव ये आपका एक इवेंट है जो कि न्यूज़ में था रिसेंटली, किस लिए है ये। फिर नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल को लॉन्च किया गया किस कंट्री में। चौथा क्वेश्चन, तमिरापानी रिवर ये अभी न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट में लोकेटेड है बताओ। फिर आप बताओ जलदूत ऐप ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप की गई है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस, कमेंट करना बिना चीटिंग के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel, and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.